ठीक है, मैं कर लूंगा, सही है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हाँ भाई। कैन वी स्टार्ट टुडेज लेक्चर? शहरोज, आपको आवाज आ रही है? आपकी बात नहीं आ रही शहरोज। अब्दुल्ला वाहिद, यस आ सर, रही आ है? रही है आवाज। ओके। So let's talk about this uh, interesting topic, the how processor communicates with the outside world. So uh, that uh, to processor, as I said, processor simplest processor model is this one, where there is a processor. It has some address bus, it has some data bus, and has a read write signal, and that's all it has to talk to the memory. And what does the address bus of the processor size determine? It determines the total memory location, the pointers that processor can generate. And the data size, database size determines how much data can be written to any particular memory location in one go. So one bus cycle, one bus transfer will move how much data that is determined by the data bus. So if the data bus is 8-bit, which is true for most microcontrollers, then the data transfer per transfer is 8-bit. And if the data bus of a processor is 16-bit, then the data per transfer is 16 2 bytes. Similarly, if the data is 32-bit, like in a 32-bit processor, then the data transfer in one go of one memory read write is 32-bit, one word of memory, 4 bytes. So read write determines whether the data, which direction data will go. So address determines where, data will determines what in the memory, and read write how in the memory. So there is another signal which is so this all of this is what processor sees. So the whole of its life, processor is just writing to memory, reading from the memory and writing to the memory. It is not doing anything else. It is reading from the memory and writing to the memory. So the processor has no other thing that it sees. So how come it can talk to the network card? It can talk to the graphics card. It can talk to the hard disk, and that is all through ports, hardware ports. So that's what we are going to talk about. So if the processor is only and always writing to the memory and reading from the memory, how is this port chemistry works in all this scene? How the port come into play? So processor, as you can see, if processor has 32-bit address bus, then the total number of memory pointers that it can generate, or this come we can say address space,
is 2 raised to the power address bus size. So AP is address bus of the processor, and on the other side, the memory has same interface. As you can notice, there is no clock. Memory is not a clocked circuit. So memory has a address input, a data input, and read-write input. If the address bus of the processor was as same as the memory that is connected to the processor, and the data bus size is same as the memory connected to the processor, then they both will simply connect to each other seamlessly, gluelessly. There will be no glue required to connect them together. But however, in real life, usually the memory connected to the processor is less than the processor's capability to generate total addresses. So the memory may be only 8 gigabytes, but processor may be able to generate 2 raised power, it may have 46 bit data address bus. So 2 raised power 46 is a very large number. And the size of address bus has nothing to do with size of data bus. So the data bus is like, if you send एक फैक्ट्री से आप एक वक्त में एक ट्रांजैक्शन करते हैं किसी फैक्ट्री से, अगर वो एक ट्रक पे ट्रांसफर करते हैं तो जाहिर है बहुत ज्यादा माल ट्रांसफर हो सकता है. अगर आप पिकअप पे ट्रांसफर करते हैं तो कम हो सकता है. ट्रांसफर तो वो एक ही है. So address is like, you know, nothing to do with data bus. It just determines कि कौन सा address है जहाँ पे आपने data transfer करना है. Memory data bus determines how much data, कितना ज्यादा data आप उस पे transfer कर सकते हैं. So on the receiving side, this case, अगर तो ये दोनों बराबर हों, they gluelessly join other, but it's not the case in real life. So therefore the need of this chip select. So that comes into play. So chip select is actually part of the DES the processor generates. And I hope you remember that we talked about this chip select signal or enable signal in the last DLC digital logic circuit course. We talked in detail how chip select is generated and how we can cascade decoders, and how can we make bigger memories from smaller memories. So that part you can go over that again and look at that, okay, how we can generate chip select if the memory connected to the processor is less than the processor capability. I mean, which is almost the case. Always the processor address bus is greater than the memory connected to this. Processor address bus is very large, even nowadays in practice. And the memory connected कितनी connect होती है आजकल? मैक्सिमम 32 GB. इससे बड़ा तो कम ही होगा कोई डेस्कटॉप जिसमें 16, 8 या 32 GB से ज्यादा मेमोरी हो. प्रोसेसर की कैपेबिलिटीज इससे बहुत ज्यादा होती हैं, और लेकिन मदरबोर्ड की कैपेबिलिटीज होती हैं जो कि बताती हैं कि कितना उसमें मेमोरी लग सकती है. प्रोसेसर की चिप जो है, द चिप इटसेल्फ इज much much bigger. So what is an IO concept of an IO port? So the concept of an IO is just like memory interfacing. Uh, the difference is that an IO port is just one memory address in the total address space. It's just one memory address in the total address space. यार ये लोग कितने लोग हैं यहाँ पे? किसी की आवाज ही नहीं आ रही. अच्छा, हैं काफी लोग हैं.
48 है? All right. So, so memory addresses are what is just one memory address in the complete memory space. So what is the address space of the processor? इसको कई लोग जो है ना ग्राफिकली भी इस तरह से बता देते हैं कि व्हाट इज द एड्रेस स्पेस ऑफ द प्रोसेसर। इसमें अब इस पे शिफ्ट करेंगे हम वीडियो में, शेयरिंग स्टॉप करनी पड़ेगी। तो अक्सर आपको ना बुक्स में और प्रोसेसर की जो है जो प्रोसेसर की जो डाटा बुक्स हैं उसमें आपको मेमोरी स्पेस इस तरह से रिटर्न नजर आएगी। तो एक एक डब्बे बनाते हैं हम लोग काफी ज्यादा, तो मेमोरी स्पेस इज जस्ट अ डब्बा। इसको कोई वायर नहीं लगानी है आपने, तारे नहीं लगाते इसको। इसमें जो है ना दिस इज व्हाट इज कॉल्ड द लोएस्ट एड्रेस or the lowest pointer. So if the processor has say 14 bit, मैं 14 इसलिए कह रहा हूं कि 14 bit address bus pick की भी 14 bit है। लेट्स में 14 रहने देते हैं या 12 बिट कर लेते हैं। सर पिक डजंट हैव सर लॉट नजर ऑफ मेमोरी टू नजर कनेक्ट। नहीं आ रहा, थोड़ा सा आप कैम ऊपर कर सकते हैं कैमरा को। तो 14 बिट एड्रेस बस पिक की। सो दैट मींस कि 14 बिट को अगर आप इसमें लिखें बिट्स में लिखें तो ये 14 बिट बनेगा 0000। बाइनरी में लिखें 12 13 14। और सबसे बड़ा एड्रेस क्या बनेगा? सारे वन। ये सबसे बड़ा 14 बिट का एड्रेस प्रोसेसर जनरेट कर सकता है। तो अब आप बताएं हेक्स में ये किसके बराबर होगा? क्योंकि इंजीनियर जो ना ये एड्रेस बाइनरी में लिख देते हैं, 0 0 1 1 उनसे नहीं लिखे जाते। वो प्रेफर करते हैं कि उसको वो हेक्स में लिख दें। हेक्स में क्या ये क्या होगा? हेक्स में कोई बताएगा? हसन हबीब, हेक्स में ये एड्रेस क्या बनेगा? बनेगा 3FFF। जमशेद ने बताया है? अहमद ने बताया। चैट जरा इधर लगा दो यार प्लीज। सॉरी आपको बार बार मैं तंग करता हूँ। मुझे घर जाके जो मर्जी दिल में कह लेना। इसका बड़ा आप लोग जो है ना
काफी अप्रिशिएट करें हमारा जो है ना लैब इंजीनियर, उनकी कंटिन्यूस हेल्प है हमारे साथ, उसके बगैर ये काम नहीं होना था। तो इमरान ने ये कितनी दफा 3FFF लिख दिया है इमरान, अहमद इमरान? सॉरी, तो 3FFF जाहिर है कि ये 4 का पूरा नहीं बनता। तो हमने पढ़ा था ना हेक्सेन नंबर, जब हम पढ़े थे कि जब 4 का पूरा ना बन रहा हो तो हम इमेजिनरी 2 जीरोस लगा के इसको 4 का बना लेते हैं। लेकिन इसकी चूंकि ये हमेशा 0 ही रहेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू जो है ये 3 ही रहेगी। तो this number maximum, this number can be 3 F F F. Good one, Jamshed. This can be 0. Of course, this can be 0 0 0 0. यही अगर प्रोसेसर पिक ऐसा लें जिसकी 12 बिट है एड्रेस बस, उस केस में फिर ये 0 0 0 0 से लेकर FFF तक जाएगा। अगर किसी प्रोसेसर की 32 बिट एड्रेस बस है तो उसके पॉइंटर जाएंगे 0 0 0 0 0, 8 0 से 8F, 32 बिट। So now this is how it is shown on the memory space of the address bus. This is the lowest address 0 0 0 0 and this is the highest address 3F F F F। ये बिल्कुल लेफ्ट मोस्ट क्या चीज है? तो क्या हुआ सर जो बिल्कुल लेफ्ट पे आपने बनाया है पी जो लिखा है, क्या चीज लिखी थी बिल्कुल लेफ्ट पे? ये वाला आता ये चीज जी सर, माइक्रो प्रोसेसर है ना, इसकी ये एड्रेस बस है जो कि 12 बिट की है, 14 बिट की है। तो माइक्रो प्रोसेसर जो है ना वो हमेशा किसी एड्रेस पे राइट कर रहा होता है या वहां से रीड कर रहा होगा। बीट है वेरिएबल, वेरिएबल है तो उसका पॉइंटर होगा, कुछ भी हो, अगर इंस्ट्रक्शन है तो इंस्ट्रक्शन का पॉइंटर होगा, वो हमें नहीं नजर आते। हम ज्यादातर डाटा पॉइंटर से बात कर रहे होते हैं। इंस्ट्रक्शन भी एक मेमोरी में एड्रेस होता है, हर इंस्ट्रक्शन मेमोरी में एक एड्रेस होता है। जो आपका प्रोग्राम की बिन फाइल है या एक्जी फाइल है, दैट इज आल्सो जस्ट you know a program that is taken up in the memory with some starting and address and some ending address. So in case of सर माइक्रो कंट्रोलर और माइक्रो प्रोसेसर सेम चीज है क्या? माइक्रो कंट्रोलर और माइक्रो प्रोसेसर सेम है? माइक्रो कंट्रोलर और माइक्रो प्रोसेसर और सेम थिंग। माइक्रो कंट्रोलर के अंदर भी माइक्रो प्रोसेसर ही होता है ना, जैसे मैंने बताया था। ठीक है, प्रोसेसर तो हर चीज में है। आवाज ऊंची करना थोड़ी। अच्छा, तो आपकी ठीक है आवाज सर। कम है थोड़ी सी। कौन बोल रहे हैं ये? अरसलान सर। हाँ। So the PIC we are using is we will think about it as a 12 bit because then the number becomes these become 4 3FFF आसानी के लिए। तो लेट्स से कि ये 3F लगे। अब आप इसमें अभी तो मैं पढ़ाने के लिए सिर्फ 14 बिट का आपको बता रहा हूँ। पिक में कई पिक में 12 बिट है, कई में 16 बिट। ज्यादा अभी मैं कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहता चीजों को, तो मैं बाद में इसका कोई थोड़ी सी रेमिफिकेशन बताऊंगा क्यों 12 बिट या 16 बिट। सो दिस इज द टोटल एड्रेस स्पेस दैट प्रोसेसर कैन जनरेट। अब जब ये डिजाइनर बनाता है, अब प्रोसेसर ने जब स्टार्ट होना है तो सबसे पहले प्रोसेसर ने 0 0 0 एड्रेस से स्टार्ट होना। अब प्रोसेसर जो है ना, ये टोटल एड्रेस स्पेस बन रही है, ये वाली कितने किलोबाइट की एड्रेस स्पेस बनती है? 2 raised power 14। हाउ मेनी किलोबाइट्स?
चैट में आंसर करे कोई। 2 रेज पावर 14 इज हाउ मेनी किलोबाइट्स। डेस्क स्पेस है, डेस्क बस है 14 बिट की। तो इतना तंग लग गया कि लोगों को किसी का आंसर नहीं आ रहा। अहमद शहजाद 10,000 किलोबाइट तो मैं कभी भी नहीं कहूंगा। 14 बिट की डेस्क बस है 16 किलोबाइट। एनीबॉडी एल्स? 14 बिट की डेस्क बस कितनी टोटल डेस्क स्पेस होगी? सईद ने कहा है 16 किलोबाइट। All right, very good. So 16 kilobyte, 2 raised power 14 is equal to 2 raised power 4 into 2 raised power 10. 2 raised power 10 is k, 2 raised power of 4 is 16. So it is 2 raised power 16 kilobyte. So that is the total disk space. So pick may decide a particular pick. मैं किसी एक पिक की बात नहीं कर रहा है। पर्टिकुलर पिक में रोम भी होगी, रैम भी होगी। रोम जो है वो जाहिर है कि इस एड्रेस पे आएगी, लोअर एड्रेसेस पे। उसकी रीजन क्या है? शुक्रिया। तो रोम पे लोअर एड्रेसेस पे आएगी, उसकी रीजन क्या है? उसी की रीजन ये कि जब प्रोसेसर ने स्टार्ट होना है उसको एक बना बनाया प्रोग्राम चाहिए जिसको वो एग्जीक्यूट कर सके। तो वो वाला प्रोग्राम रोम में होना चाहिए। रैम में होगा तो वो तो कभी, रैम ऑन होते ही प्रोसेसर की रैम में कुछ नहीं होता। तो रोम का एरिया, यहाँ पे रोम आती है प्रोसेसर में। कोई भी दुनिया का प्रोसेसर होगा जहां पे उसका रीसेट वेक्टर है, यूजुअली रीसेट वेक्टर 000 होगा। प्रोग्राम स्टार्ट हुआ उसने सबसे पहले यहाँ पे, तो यहाँ रोम है इन पिक दैट वुड बी योर कोड मेमोरी। यहाँ पे इतनी लोकेशन फर्ज करें 4 किलो बाइट है, टोटल 16 किलो बाइट है, उसमें से 4 किलो बाइट रोम की आ गई, या 8 किलो बाइट की रोम आ गई। अगर 8 किलो बाइट की रोम है तो आधी मेमोरी आपके कोड के लिए चली जाएगी। रैम को फिर क्या किधर क्या करें? तो रैम का एड्रेस जो है वो ऊपर कहीं दे देते हैं, यहाँ पे रैम। और इसमें सारा आपका डाटा स्टोर होता है। ऑल द पॉइंटर टू योर वेरिएबल्स आर स्टोर्ड इन हियर। तो अगर तो रैम भी 8 किलो बाइट की होगी, रोम भी 8 किलो बाइट की होगी, तो रैम और रोम ने पूरे प्रोसेसर की डेस्क स्पेस अपने कब्जे में कर ली। दो नो प्लेस लेफ्ट। जब हम तो पिक ने एक और भी इसके अंदर थोड़ी सी चेंज की हुई है, जो कि मैं, मेरा ख्याल है बताना जरूरी समझता हूँ। है तो पिक ने थोड़ी इसमें चेंज की हुई है कि उसने कहा कि अच्छा हम ऐसे करते हैं कि रोम की प्रोसेसर जो है ना, अ, अ, उसके कोड मेमोरी अलहदा रख लेते हैं विच इज 14 बिट, और डाटा मेमोरी अलहदा कर लेते हैं। दिस इज 12 बिट।
14 बिट कोड मेमोरी का मतलब है 2 रेस पावर 14 16 किलोबाइट का आप इसमें कोड लिख सकते हैं। ट्वेल्व बिट डेटा बस का क्या मतलब है कि 2 रेस पावर 12 मीन्स 4 किलोबाइट की आप रैम आपके पास आ जाती। तो डेटा मेमोरी उन्होंने सेपरेट कर दी और कोड मेमोरी उन्होंने सेपरेट कर दी। सर कोड जो है वो रोम में होगा और डेटा मेमोरी रैम में रैम होगी। में होगी, रैम में होगी। इस तरह की आर्किटेक्चर जिसमें कोड का अलग से एड्रेस हो और वो डेस्क बस का साइज भी डिफरेंट हो, डाटा अलग से एड्रेस हो और उसका अलग से साइज हो, तो इस तरह की आर्किटेक्चर का खास नाम होता है। उसका नाम क्या होता है? हार्वर्ड आर्किटेक्चर। ये वाली जो आर्किटेक्चर थी जो इसका मैं पहले जिक्र कर रहा था, किधर गई? सॉरी, ये वाली आर्किटेक्चर जिसमें डाटा प्रोसेसर को नहीं पता होता कि मैं रोम में लिख रहा हूँ या रैम में लिख रहा हूँ, दोनों की एक ही एड्रेस बस होती है। और उसी एड्रेस में फर्क होता है कि जब वो यहाँ पे पॉइंट करती है तो रोम होती है, रैम होती है, जब यहाँ पे पॉइंट करती है तो रोम होती है। तो इस तरह की आर्किटेक्चर को क्या कहते हैं, कोई बताएगा? इस तरह की आर्किटेक्चर को क्या कहते हैं? इसका नाम है वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर। आई होप माय स्पेलिंग आर राइट। वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर ये ऑब्सोलीट हो गई, वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर। अब हार्वर्ड आर्किटेक्चर ही चलती है। अब आपका कोड जो है चाहे वो रैम में लिखा हो उसको रोम ही समझा जाता है। आपने कभी अपने सॉफ्टवेयर में देखा होगा, सी में कभी आप कोड मेमोरी लोकेशन को चेंज नहीं कर सकते। कोई आप स्ट्रिंग बनाते हैं जो रोम में बनी हुई है तो आप उस स्ट्रिंग को सिर्फ रीड कर सकते हैं, यू कैन नॉट चेंज इट। तो हार्वर्ड आर्किटेक्चर में you have separate area for ROM and separate area for RAM। तो अगर प्रोसेसर ने फर्ज करें, प्रोसेसर ने कहना है x इज इक्वल टू सम मेमोरी लोकेशन, यहाँ पे उसका पॉइंटर है। इसमें क्या हो रहा है? सर थोड़ा सा नीचे कर लें कैमरा, नीचे नजर नहीं आ रहा। तो x इज इक्वल टू सम मेमोरी लोकेशन विद ए पॉइंटर। तो इसमें क्या हो रहा है कि प्रोसेसर एक वेरिएबल की रीड करना चाह रहा है बेसिकली। तो यूजर ने कहा था x इज इक्वल टू वाई, तो प्रोसेसर ने कहा कि अच्छा इस मेमोरी लोकेशन का डाटा यहाँ पे कॉपी करना है। तो उसने जो इंस्ट्रक्शन जनरेट की वो क्या की, उसने जनरेट की कि इस एड्रेस से डाटा लाओ और इसको एक्स में डालो, वेयर एक्स इज अ रजिस्टर। हमने ये पढ़ा भी था डीएलसी में। तो ये पॉइंटर जो है वो डाटा बस के लिए जनरेट होगा क्योंकि ये वेरिएबल पॉइंटर है, ये रैम का पॉइंटर है, तो ये 12 बिट का पॉइंटर होगा। लेकिन ये सारी इंस्ट्रक्शन जो है x इक्वल टू वाई,
उसमें 12 बिट का पॉइंटर भी है, ये सारी मिल मिला के तो बहुत बड़ी इंस्ट्रक्शन हो जाएगी ना। तो ये 14 बिट की इंस्ट्रक्शन है, ये कोड मेमोरी में जाए। तब जब कोड मेमोरी में प्रोग्राम चलता चलता x इक्वल टू वाई आएगा तो वहां पर लिखा होगा कि मेमोरी से रीड करो, x की वैल्यू साथ में पॉइंटर दिया हो। पॉइंटर का पार्ट जो है वो एड्रेस का पार्ट जो है वो रैम को चला जाएगा, और बाकी जो है वो आपके, जिस तरह कि हमने डीएलसी में भी देखा था कि मेमोरी के इंस्ट्रक्शन के अंदर ही वेरिएबल का एड्रेस भी होता है। तो वो जो वेरिएबल का एड्रेस होता है वो पॉइंटर होता है। तो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग आर्किटेक्चर। So whenever we are going to talk about variables, mostly we are going to talk about variables. So we'll think about 12-bit memory. And whenever we are going to talk about a code instruction size, we'll talk about 14-bit memory or 16-bit memory. So ये जो पूरी इंस्ट्रक्शन है x इक्वल टू वाई, ये 16 बिट है। उसके अंदर एक पोर्शन होगा जो कि एड्रेस होगा किस मेमोरी लोकेशन से डाटा आना है, किस मेमोरी लोकेशन। x जो है रजिस्टर है, और रजिस्टर का नंबर भी इसी इंस्ट्रक्शन के अंदर ही होगा। क्योंकि रजिस्टर बहुत थोड़े से होते हैं तो उसका नंबर तो थोड़ा छोटा सा ही होगा। अगर 8 रजिस्टर है तो ये x का नंबर जो है वो R0 से लेकर R7 तक 3 बिट का होगा। अगर 16 रजिस्टर है वो 4 बिट का होगा। तो इस तरह से ये तो बहुत छोटा सा एड्रेस चाहिए रजिस्टर नंबर को मेंशन करने के लिए। मेमोरी को मेंशन करने के लिए बड़ा एड्रेस चाहिए 12 बिट का। और ये सारे रजिस्टर जो है आपके प्रोसेसर के वो 8 बिट है। So in PIC processor, as far as the data bus is concerned, it is 8 bit. सर इसमें एक चीज समझ नहीं आई। क्या? सर इसमें एक क्वेश्चन है सर। सर हाँ हाँ आपने कहा था कि जो हम पिक यूज कर रहे हैं ये 14 बिट है। हाँ हाँ तो उसमें सर आपने कोड मेमोरी में भी आपने 14 बिट ले ली और उसमें भी आपने 12 बिट ले ली है, तो 26 बिट नहीं हो गई? कोड में 14 है, डेटा में 12 बिट है, हाँ हाँ लिखा है आपने सामने। ठीक है। तो ये 14 तो ना रहा, मतलब कोड में 14 है, उसमें 12 है, डेटा में 12 है। 14 प्लस 12 26 क्यों नहीं हुआ ये? नहीं कोड की इंस्ट्रक्शन तो 12 बिट में की है ना, 14 बिट की है टोटल। अच्छा ठीक। तो आप कोड कितने बिट का बच गया? एड्रेस ने 12 बिट ले ली तो आप कोड कितने बिट का बच गया? 2 बिट का। 2 बिट का। ये तो बहुत छोटा सा आप कोड है ना, राइट? तो बहुत तो छोटा सा ये आप कोड है। तो इसकी एक सोल्यूशन अभी हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में कि कैसे हम इसको हल करें इस मसले को। मेमोरी में 14 बिट की इंस्ट्रक्शन है, इंस्ट्रक्शन दैट कम्स आउट ऑफ द मेमोरी इज 14 बिट और 16 बिट इंस्ट्रक्शन, और कोड मेमोरी का एड्रेस है 14 बिट। देखिए ये तीनों चीजें डिफरेंट हैं। 14 बिट का मतलब है टोटल कोड का साइज। हर मेमोरी लोकेशन पे कितने बिट का इंस्ट्रक्शन पड़ी है? 16 बिट की। उस 16 बिट में से कितने बिट चले जाते हैं इसको डाटा मेमोरी को? 12 बिट। तो ये 14 बिट को इससे कंफ्यूज ना करें, इसको इससे कंफ्यूज ना करें। दे आर ऑल 3 ऑर्थोगोनल पैरामीटर। अगर आपने टोटल कोड मेमोरी बढ़ानी है तो आप इसको ज्यादा करेंगे। आपने इंस्ट्रक्शन की विड्थ ज्यादा करनी है तो इस कोड मेमोरी के अंदर हर लोकेशन के ऊपर डाटा ज्यादा करेंगे। वो इसकी ये वाली विड्थ कि कितने बिट का डाटा स्टोर्ड है एक मेमोरी लोकेशन, वो 16 बिट का डाटा स्टोर्ड है। सिमिलरली अगर आपने डाटा मेमोरी बढ़ानी है तो आप ये इसको बड़ा करें, और हर मेमोरी पे कितना डाटा स्टोर्ड है
वो इसका साइज होगा। इस केस में, पिक के केस में ये 8 बिट्स हैं, इक्वल टू बाइट। तो 8 बिट का डाटा स्टोर्ड है विच इज इक्वल टू 1 बाइट। So PRIC always stores data or reads data in 1 byte. It always reads instruction 16 bit or store instruction 16 bit. And it always generates a program address. Program counter की size का है? Program counter which runs through the whole program. Program counter is 14 bit. So these are all three different uh, aspect of the architecture. Very important. जब आप कंप्यूटर आर्किटेक्चर पढ़ते हैं या ऑर्गेनाइजेशन पढ़ते हैं तो यही चीजें होती हैं जो आपको पढ़नी होती है कि ये चीज क्या डिटरमिन करती है, ये चीज क्या डिटरमिन करती है, और ये जो 8 बिट का इसमें से डाटा रीड या राइट कर सकते हैं डाटा मेमोरी से, ये क्या चीज शो करती है। तो डाटा मेमोरी से 8 बिट का डाटा जब आपने इसमें 8 बिट लगा दिए तो इसका मतलब है कि आप एक वक्त में 8 बिट का डाटा रीड कर सकते हैं या स्टोर कर सकते हैं। ये कोड मेमोरी सारी की सारी रोम बन जाती, ये सारी की सारी रैम। बहुत बहुत इंटरेस्टिंग सा ये एक कॉम्बिनेशन है। यहाँ से प्रोसेसर प्रोग्राम काउंटर बढ़ता कम होता रहता है। याद है ना, हमने पढ़ा था प्रोग्राम काउंटर इज एन इंक्रीमेंटिंग काउंटर। वो काउंट करता है, पहले रीसेट होता है 0 0, यहाँ से पहली इंस्ट्रक्शन आती है, वो बढ़ता रहता है। हर इंक्रीमेंट के साथ वो एक नई इंस्ट्रक्शन यहाँ पे देता जाता है। तो यहाँ पे क्या आता है आउटपुट पे, यहाँ पे क्या आता है, इंस्ट्रक्शन। लेट्स होप कि कुछ कलर चेंज हो जाए। इंस्ट्रक्शन। तो इसकी जो ये सिर्फ रीड ओनली प्लेस है, रीड ओनली चीज है ये वाली रोम। तो इसमें मैंने इसलिए डबल एरो नहीं लगाया। इसमें जब राइट करना होता है ना प्रोग्राम, तो प्रोग्रामर उस वक्त इसकी डाटा राइट वाला फीचर इस्तेमाल करके कोड मेमोरी में डाटा राइट करता है। जब वो एक दफा राइट हो जाता है चिप के अंदर, प्रोग्रामिंग कंप्लीट हो जाती है, तो फिर वो सिर्फ रीड ही कर सकते हैं। तो राइट कैसे करते हैं, वो वाला फीचर कैसे चलता है, वो मैं अभी उस पर बात नहीं करना चाह रहा। वो कैसे उसको करता है, वो जिस तरह फ्लैश प्रोग्रामिंग हमें फ्लैश मेमोरी प्रोग्राम होती है, एग्जैक्टली उसी तरह से ये भी प्रोग्राम हो जाता है। जैसे आप अपने कंप्यूटर में कभी कभी होता था ना, पुराने प्रोसेसर मोबाइल फोन होते थे तो उनकी फ्लैश अपडेट या सॉफ्टवेयर अपडेट करवानी पड़ती थी, ऑफिस सेंटर जाना पड़ता था, तो उसमें नई दोबारा, या उसको बिल्कुल ही अगर करप्ट हो गया तो उसमें दोबारा से सारी सॉफ्टवेयर राइट करनी पड़ती थी। तो भाई ऐसे होता था है, एक जमाने में इस तरह भी होता था। अब तो आप ऑनलाइन अपडेट कर लेते हैं पूरी सॉफ्टवेयर। अगर हम दोबारा सारी प्रोसेसर की सॉफ्टवेयर डाउनलोड करनी है तो वो भी हो सकता था कि आप पूरी की पूरी सॉफ्टवेयर उसके अंदर नई डालें। जैसा पीसी की भी पूरी रोम बायोस जो है ना वो नई डाल सकते थे, नई अपडेट हो सकती थी। तो सेम केस हेयर, तो इंस्ट्रक्शन जब इसमें राइट होनी है वो एक अलग सर्किट होता है जो इसको एज ए फ्लैश प्रोग्रामर यूज करता है। वंस इट इज रिटन, you power it up, program counter starts from 0 0, it gets instruction, jumps somewhere, कोई प्रोसीजर कॉल, कोई फंक्शन कॉल, कोई लूप में फंसा रहता है। ऐसे ऐसे लूप, वाइल वन लूप चलती रहती है इसके अंदर, तो इसी के अंदर अंदर ही रहता है वो वाइल वन की लूप में फंसा रहता है। मोस्ट ऑफ द टाइम, 99% ऑफ द टाइम, ऑल द प्रोसेसर इन द वर्ल्ड आर स्टक इन अ वाइल वन लूप, फॉर लूप या कोई डू वाइल लूप,
लूपों में ना फंसे हो तो बेचारे कुछ भी नहीं, क्या करेंगे। 1 बिलियन लाइंस का कोड हो या और 1 गीगाहर्ट्ज का प्रोसेसर हो, वो 1 बिलियन लाइंस का कोड 1 सेकंड में कर देगा। तो ये इतना टाइम जो लगता है, किधर लग जाता है। मोस्ट प्रोसेसर्स आर जस्ट स्टक इन लूप्स, लूपों में फंसे रहते हैं, वो अपनी दुम के पीछे भागते रहते हैं। So most of the time processor is reading, writing from the memory. Now we're going to, for IO ports, this is where we are going to focus. The RAM, because processor sees RAM as a variable memory. Or since it's a variable memory, it can be written and write to. When it is written to, it is an output port. When it is, इसी के अंदर ही आपका डाटा भी वेरिएबल्स भी होते हैं, लेकिन बाकी चीजें इसमें कैसे फिट होती हैं, वो सारा कुछ जो है ना, वो जिन्होंने माइक्रो कंट्रोलर बनाए उन्होंने वो चीजें फिक्स कर दी हैं। इसी रैम के अंदर कुछ जगह उन्होंने वेरिएबल्स के लिए रखी हुई, ऊपर वाली साइड पे कुछ जगह उन्होंने रखी हुई, जहां पर उन्होंने कहा कि यहाँ पे जो भी चीज राइट करेंगे आप, वो मेमोरी में राइट नहीं होगी, वो पोर्ट पे राइट हो जाएगी। इसलिए इसको उन्होंने नाम दे दिया स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स, SFR। तो SFR stands for special function registers. So ports are special function memory locations or registers. Special function registers. So processor sees them as a register. Special function register. So anything you write on this address is actually not written to any memory address, is not written to a variable. It is actually written to a register, and that register is basically, उसके register की सारी outputs जो हैं वो, अगर वो पोर्ट ए का एड्रेस है तो पोर्ट ए की उस रजिस्टर की सारी आउटपुट जो है वो पोर्ट ए की बिट्स बन जाती हैं, और वही आपको प्रोसेसर अपनी तरफ से राइट कर रहा है मेमोरी लोकेशन, पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन पे, और वो मेमोरी लोकेशन पोर्ट ए। अगर आप असेंबली लैंग्वेज में जाके देखेंगे, आपने एक इंस्ट्रक्शन लिखी पोर्ट ए इज इक्वल टू 0xFF, आप जब असेंबली लैंग्वेज में जाएंगे तो पोर्ट ए क्या होगा? हाँ जी, जब हम करेंगे ये काम, ब्रेक करेंगे असेंबली लैंग्वेज में, so when you go to the assembly language, what will you see in the instruction? In this instruction आपने लिखा port B is equal to 0xFF। ये कोड प्रोसेसर चला रहा था रॉम से, कहीं पे यहाँ पे आके रॉम से उससे चलते चलते उसको एक इंस्ट्रक्शन मिली यहाँ पे, वो थी पोर्ट B is equal to 0xFF। ये सर कैमरा ना ये एक कीवर्ड है, क्या करें? सर कैमरा थोड़ा नीचे कर दीजिएगा। हाँ जी, पोर्ट बी क्या है? एक कीवर्ड है। अब वो कीवर्ड बेसिकली पोर्ट बी का कोई मतलब नहीं है। अल्टीमेटली जब कोड में सारी चीजें बाइनरी में जाती हैं तो हर चीज जो है या तो डेस्क में ट्रांसफर हो जाती है या डाटा में ट्रांसफर हो जाती है। ये डाटा में ट्रांसफर हो जाएगी, ये चीज डेस्क में ट्रांसफर होगी, और पोर्ट बी क्या होगा? वो एक 12 बिट का डेस्क होगा। आपको असेंबली लैंग्वेज में कहीं पोर्ट बी नहीं लिखा हुआ, वहां पे इसका डेस्क लिखा हुआ नजर आए। और मैं प्रोसेसर बड़ा खुश होता है कि हाँ हाँ मैं जी मेमोरी में राइट कर रहा हूँ,
इस एड्रेस पे राइट कर रहा हूँ, ये 0xx की वैल्यू राइट कर रहा हूँ, उसको नहीं पता होता कि ये मेमोरी एक्चुअल रैम नहीं है। ये तो एक इस पे जो भी मैं राइट करूंगा वो तो यूजर को बाहर पिनों पे मिल जाएगा कि ये यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे +5 वोल्ट है, वहां पे 0 वोल्ट। तो ये कॉन्सेप्ट सिर्फ यही है कि एक पर्टिकुलर एड्रेस पे जब आप एक रजिस्टर लगा देते हैं और उसको आउटसाइड वर्ल्ड से कनेक्ट कर देते हैं, तो उसको हम कंप्यूटर के दिमाग में कहते हैं कि ये हमारी पोर्ट बन गई। उसमें डाटा आप जो राइट करते हैं वो एज प्रोग्राम को, प्रोसेसर को यही लगता है कि मैं मेमोरी में राइट कर रहा हूँ, एक्चुअली वो पोर्ट पे राइट कर रहा हूँ। सो पोर्ट इज जस्ट ए पॉइंटर इन द डाटा मेमोरी, बट द आर्किटेक्चर, द हार्डवेयर इज स्पेशल। Writing on that address basically generates a particular address that is actually activates a register in the processor। और वो रजिस्टर जो है वो 7374 जो हमने 74LS3 748 बिट का डाटा डी फ्लिप फ्लॉप का रजिस्टर बनाया हुआ था, एग्जैक्टली वही रजिस्टर है डी फ्लिप फ्लॉप से। तो ये जब एड्रेस आता है वो डी फ्लिप फ्लॉप जो है वो का 8 बिट का रजिस्टर एक्टिवेट होता है। जो भी डाटा हमने ये 0xFF दिया होता है वो उस एड्रेस पे राइट हो जाता है। वो अगर आउटपुट पे एलईडी लगी हुई है, सारी एलईडी ऑन हो जाती हैं। ये इतनी सी सिंपल सी बात है, वेरी सिंपल। तो प्रोसेसर अपनी तरफ से बड़ा खुश होता है कि मैं मेमोरी में डाटा रीड राइट कर रहा हूँ, लेकिन वी आर मेकिंग फूल ऑफ द प्रोसेसर। समटाइम वी इसी तरह ये होता है प्रोग्राम पीसी में, कहीं भी आप चले जाएं आपको हर एक चीज एज प्रोसेसर में हार्ड डिस्क को भी आपको 4 पोर्ट्स होती हैं हार्ड डिस्क की जिससे वो कनेक्टेड होती है। प्रोसेसर अपनी तरफ से समझता है कि मैं मेमोरी में राइट कर रहा हूँ, वो एक्चुअली वो डाटा हार्ड डिस्क को जा रहा होता है। हार्ड डिस्क का प्रोसेसर वो डाटा पकड़ता है, कभी वो मेमोरी में राइट करता है जिसको हम यूजर डाटा कहते हैं, कभी वो हार्ड डिस्क को डाटा भेजता है कि किस सेक्टर में राइट करना है और किस लोकेशन पे राइट करना है, वो उसका ऑपरेटिंग सिस्टम उसको बताता है। तो कुछ डाटा इंफॉर्मेशन हार्ड डिस्क के प्रोसेसर को जाती है, उससे उसका वो जो है उसका हेडर मूव करता है, उससे डाटा वगैरह की भी नहीं होती। बिल्कुल इसी तरह वो पोर्ट और है जिसपे उसने बताना होता है कि ये चीज जो है ना, ये हेडर यहाँ पे मूव, हेड यहाँ पे मूव करो, और या राइटिंग हेड जो है इसका रीडिंग हेड जो है ना वो सेक्टर इस सेक्टर पे ले जाओ और इस जगह ले जाओ और वहां पे राइटिंग स्टार्ट करो। वो डाटा वो और चीज वो उसके वो डाटा पोर्ट पे नहीं राइट करता, वो उसकी कमांड पोर्ट पे राइट करता है या कॉन्फ़िगरेशन पोर्ट पे राइट करता है। जो एक्चुअल डाटा जब उसने राइट करना था वो दूसरी पोर्ट यूज करता है, उसमें जो डाटा वो भेजेगा वो हार्ड डिस्क का प्रोसेसर उस मेमोरी उस सेक्टर में जाकर उसको राइट करेगा। तो इस तरह से 4-5 पोर्ट्स होती हैं, किसी से वो डाटा रीड करता है, किसी से राइट करता है, किसी से वो हार्ड डिस्क का स्टेटस रीड कर रहा था, किसी से वो हार्ड डिस्क को कंट्रोल इंफॉर्मेशन दे रहा होता है। तो इस तरह से कुछ पोर्ट्स चाहिए होती है, 4-6 पोर्ट्स चाहिए होते हैं जिससे वो किसी भी डिवाइस से कम्युनिकेट करता है। लेकिन वो सारे पोर्ट्स जो हैं वो उसको एज ए मेमोरी में एड्रेस ही नजर आती है। वो एक पर्टिकुलर हार्डवेयर होती है जो उस जगह कोई मेमोरी नहीं होनी चाहिए, वहां पे कोई मेमोरी नहीं होती, रैम नहीं होती, वहां पे वो जगह खाली होती है। वहां पे एक्चुअली स्पेशल हार्डवेयर लगी होती है जो उस एड्रेस को कैच कर लेती है, उसको पता लग जाता है कि ये हार्ड डिस्क से प्रोसेसर कम्युनिकेट कर रहा है। प्रोसेसर अपनी तरफ से वही होता है खुश कि मैं मेमोरी में रीड राइट कर रहा हूं। अगर आप जाएं इसमें अपने सिस-इन्फो 32 बिट में जाएं, आपको सारे नजर आ जाएगा कि प्रोसेसर किस एड्रेस पे राइट करता है। तो मेमोरी में राइट नहीं होता, वो पोर्ट एड्रेस होता है उसका, वो आईओ पोर्ट पे जाके राइट हो जाता है। मैंने शायद आपको दिखाया भी था, अगर आप कहते हैं तो मैं दोबारा दिखा देता हूँ आपको। दिखा दूं दोबारा या ठीक है? मैंने उसमें डीएससी लैब में शायद दिखाया भी था आपको, अगर आप कहते हैं तो दोबारा दिखा देता हूँ कि वो क्या क्या होता है एड्रेस।
जैसे आखिरी थिंग फॉर टुडे, स्क्रीन शेयर दोबारा करूं? सॉरी, ये वाली नहीं करनी थी। हैं? लेक्चर नहीं, मैंने पूरी डेस्कटॉप शेयर करना था। डेस्कटॉप कैसे शेयर करते हैं? डेस्कटॉप किधर आ रहा है? डेस्कटॉप नहीं आ रहा। हाँ हाँ, देखते हैं अभी। रन, लेट्स सी अगर आई कैन मेक दैट वर्क। रन sys info 32 ms info 32, ये आ गया। ये शेयर हो जाएगी ना? कहाँ पे? ये देखें, ये आपके सामने है। आप ms info 32 टाइप करें अपने प्रोसेसर के ऊपर डेस्कटॉप पे, तो ये चीज आपके सामने आ जाए। यहाँ पे अगर आप जाएं, सुन रहे हैं ना आप? यहाँ पे जाएं, आपको ये हार्डवेयर रिसोर्सेज नजर आ जाएंगे। यहाँ पे जाएं, ये आईओ। अब ये आईओ में आपको बता रहा है, ये चूंकि 32 बिट का प्रोसेसर है और इसने डाटा भी 32 बिट का रखना है, तो ये आपको हर चीज का यहाँ पे बताएगा। ये देखें, ये सीमॉस क्लॉक जो है, इसमें जब उसने राइट करना है वो किस पोर्ट पे राइट करेगा, ये एड्रेस है उसका। तो इस एड्रेस पे रैम नहीं है, इस एड्रेस पे रोम नहीं है। प्रोसेसर अपनी तरफ से राइट करता है इस मेमोरी एड्रेस पे, वो डाटा जो है ना आपके रियल टाइम क्लॉक को चला जाता है। इस तरह सिस्टम का टाइमर है। हम भी टाइमर पढ़ेंगे। टाइमर बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रोसेसर ने जितनी भी स्केजुलिंग करनी होती है, बेसिक स्केड्यूल रन ऑन द टाइमर। तो सिस्टम टाइमर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। वो 1 मिली सेकंड, 10 मिली सेकंड के बाद वो प्रोसेसर जो है ना टास्क स्विचिंग करता है। इन आपका जो है ना माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, आपके जो है लिनक्स, वो 1 मिली सेकंड के बाद टास्क डिसाइड करता है कि कौन सा हाईएस्ट प्रायोरिटी टास्क है, किसको मैंने रन करना। तो हर एक के रिसोर्सेज हैं। और एक जमाना था कि इसमें से कुछ जगह होती जो जो पोर्ट्स होती थी, वो यूजर पोर्ट्स होती थी, और वो आपके वो जो है ना कंप्यूटर पे आप कार्ड लगा लेते थे, और वहां पे आप जो भी उस एड्रेस पे राइट करते था, वो कंप्यूटर के उस कार्ड से आप उसको अपनी हार्डवेयर डिजाइन कर सकते थे। तो अभी उसकी बात करेंगे, मे बी सम टाइम लेटर, अभी आपको समझ नहीं आएगा। तो देखें, ये मदरबोर्ड रिसोर्सेज हैं। पहले इस डेस्क के ऊपर आपकी सिस्टम स्पीकर होता था। इस डेस्क को आप जो 1010 राइट करके ना, वो पुराने जमाने में यू कुड एक्चुअली क्रिएट साउंड। और जो आपको जब आप सिस्टम ऑन करते हैं, तो आपके बिल्कुल एक और स्पीकर होता है जो मदरबोर्ड पे लगा होता है, वो अगर कोई प्रॉब्लम हो तो वो उसमें से आवाज आती है। वो इस ड्रेस पे लगा हुआ है। मतलब आप ये समझते होंगे, पता नहीं ये आवाज कैसे आ रही है। ये आवाज बड़ी आसान है। जब एरर आती है, प्रोसेसर एक लूप में जाता है और इस पोर्ट के ऊपर 0101 एक पर्टिकुलर फैशन से राइट करता है, उससे वो पर्टिकुलर आवाज जनरेट होती है। लोगों ने इसको यूज करके बड़ी गेमें बनाई हुई हैं। आप पुराने जमाने की गेम, जब आपके पास हार्ड साउंड ब्लास्टर या हार्डवेयर या इंटेल की कोई ग्राफिक्स कार्ड नहीं होता था और कोई ऑडियो डिवाइस नहीं होती, लोग इसी के यूज करके गेम्स बनाते हैं। आप पुराने जमाने की गेम देखें, पैकमैन है, या आपके पुराने जमाने की गेम होगी रैली एक्स है, या और कौन सी है पुरानी गेम, डेव है। पुरानी गेम वो सारी जो है, उनमें वो मदरबोर्ड, वो उनको उस जमाने में कोई एक्सटर्नल स्पीकर नहीं होता था, वो इस एड्रेस पे राइट करती थी,
0 और 1, उसी से वो आवाज जनरेट होती थी। अनबिलीवेबल, अनबिलीवेबल। सो दिस इज ऑल द आईओ पोर्ट्स। तो यहाँ से आप जाके देख सकते हैं कि किस इस एड्रेस पे आप राइट नहीं करने देगा, क्योंकि ये प्रोटेक्टेड एरिया है। हार्ड डिस्क का भी यहाँ पे कहीं होना चाहिए। अगर तो हार्ड डिस्क पीसीआई पोर्ट से नहीं लगी हुई, पीसीआई का बहुत ज्यादा रिसोर्सेज पीसीआई के होते हैं। ये देखें वाईफाई आपका इस एड्रेस पे लगा हुआ। इंटरेस्टिंग। तो you mess with you want to mess with your Wi-Fi, you write something over here directly। ये बिल्कुल जैसे कहते हैं ना, कर्नल से भी नीचे जाके यू आर एक्चुअली इन द हार्डवेयर एब्स्ट्रैक्शन लेयर भी क्रॉस कर ली आपने। आप सीधा जाके प्रोसेसर के दिल के अंदर घुस गए हैं व्हेन यू आर राइटिंग डायरेक्टली टू दिस एड्रेस। एक हार्डवेयर एब्स्ट्रैक्शन लेयर होती है जो बायस बनाती है, और उसके ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम की एक हार्डवेयर लेयर होती है जो कि एपीआईज बनाती है, जिसको आप सॉफ्टवेयर में एक्सेस करते हैं। तो आप थ्रू एपीआई एक्सेस कर सकते हैं। वो प्रोसेसर मेक श्योर कर देता है कि वो रिसोर्स फ्री हो जब उसने आपका काम करना है। आप डायरेक्टली इस पे कोई राइट करेंगे, सत्यानाश हो जाएगा उसका, और वो आपको करने भी नहीं देगा। बहुत ज्यादा चेक एंड बैलेंसेस हैं कि वो इस पोर्ट पे आपको राइट नहीं करने देगा। आप कोई पॉइंटर सेट करें इसके बराबर एंड देन राइट ट्राई टू राइट सम वैल्यू ऑन दिस पॉइंटर, व्हाट हैपेंस? So I think it's enough for today's lecture. And so this is the basic concept of IO ports. आप इंजीनियर हैं, आपको पता होना चाहिए मतलब कि आईओ पोर्ट्स क्या होती हैं, वो प्रोसेसर को क्या उनमें नजर आता है, कैसे वो उन पे राइट करता है, कैसे वो उनसे रीड करता है। Let's end it here unless someone has some question to ask। कोई आपके ब्रेन में कोई एक्टिविटी चलनी शुरू हुई है, आप कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं? हाँ जी, तो पूछें क्वेश्चन, वरना फिर हम मीटिंग एंड करने लगे। जल्दी से पूछें कोई क्वेश्चन। सर जो आपने हमें भेजा है कहते हैं जो पीआईसी, वो भी क्या कहते हैं 14 बिट है? पीआईसी भी एक पोर्ट है प्रोसेसर के लिए, पीसीआई। तो जो आपने हमें जो माइक्रो कंट्रोलर भेजा वो कितने बिट का है? वो जो है जो आपने हमें भेजा जो रेड ये वाला, ये बताया ना तो आपको, ये सामने लिखा हुआ है। ये प्रोसेसर जो है माइक्रो कंट्रोलर है, इसमें इंस्ट्रक्शन का एड्रेस जो है वो 14 बिट का है, जो वहां से इंस्ट्रक्शन। तो जो आपने हमें लैब के लिए भेजे वो भी 14 बिट है? जो लैब का ही प्रोसेसर जो भेजा है उसी की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है ठीक है ठीक है। मैंने और किसी की बात करनी थी, उसी की बात कर रहा हूँ बेटा। जो मैंने आपको भेजा है उसी की हम डिस्कस करेंगे थ्रू आउट। ये सिर्फ 14 बिट से ज्यादा बड़े माइक्रो प्रोसेसर्स होते हैं, 14 बिट से बड़े माइक्रो प्रोसेसर्स। मुझे लगा कुछ कीड़ा उड़ के 14 बिट से बड़े। हाँ, सारे हर टाइप के मिल जाते हैं आपको, हर टाइप के मिल जाते हैं। अच्छा, सबसे बड़ा कौन सा है? सबसे बड़ा कितने बिट? उसमें वो फिर वो चूंकि उसमें फिर वो चीज नहीं रहती ना, उसमें आप फिर माइक्रो आर्म बेस्ड कोटेक्स प्रोसेसर में चले जाते हैं, या फिर आप उसमें चले जाते हैं, क्या कहते हैं उसको, एक तो आर्डिनो है, दूसरा कौन सा होता है, रास्पबेरी पाई में चले जाते हैं। उसमें जो है ना प्रोसेसर जो है वो इतना बड़ा है कि वो उसकी 880 बिट का प्रोसेसर, 80 पिन का प्रोसेसर है, या 100 पिन का प्रोसेसर है। उसकी मेमोरी बहुत बड़ी होती है, रोम भी बहुत है, रैम भी बहुत है, बहुत ज्यादा होती है उनके अंदर। जो है ना वो 1 गीगाबाइट की रोम हो सकती है, बिल्ट इन रोम। बिग प्रोसेसर में लिमिटेड है, आई हैवंट सीन मोर देन फ्यू मेगाबाइट ऑफ रोम।
लेकिन वो जो प्रोसेसर है ना, हाई एंड प्रोसेसर हैं, जैसे आर्म के कोटेक्स प्रोसेसर हैं जो आपके आर्डिनो में यूज होते हैं, या आपके उसमें यूज होते हैं रास्पबेरी पाई में, वो भी एम्बेडेड सिस्टम है, वो भी इसी को बेस करके बनाए हुए हैं। रास्पबेरी पाई भी का भी वही सीन है। वो भी हमारा जो ग्रीन बोर्ड है वो बेसिकली उसका इक्विवेलेंट है एक रास्पबेरी पाई। पिक भी वही चीज है, वो उसमें प्रोसेसर के अंदर से पोर्ट्स निकाली हुई हैं और उनके एक खास फैशन में अरेंज करके दे दिया है। सिर्फ फर्क ये है कि लोगों को पता है कि इस तरह से रेंज है, लोग अपनी हार्डवेयर उसमें इंस्टॉल कर लेते हैं, जिसको शील्ड्स कहते हैं। ये जी हमने शील्ड लगाई है रोबोटिक कंट्रोल के लिए, ये शील्ड लगाई है जी सीएनसी मशीनिंग कंट्रोल के लिए। तो वो पिक के अंदर वो, चूंकि वो वेल डिफाइंड जगह पे ही रहती है हर वक्त, तो उसमें जो है ना फिर कोई थर्ड पार्टी जो है जिसका आर्डिनो से कोई ताल्लुक नहीं है, वो अपनी हार्डवेयर डिजाइन करता है। साथ में वो उसकी सॉफ्टवेयर सारी बता देता है कि इस जगह से इसकी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करें, वही सॉफ्टवेयर आप उसमें, वो तो बच्चों के काम फिर हो जाते हैं ना बिल्कुल ही। तो आप शील्ड बनाते हैं सीएनसी मशीन कंट्रोल के लिए, या आप शील्ड लगा देते हैं जीएसएम मॉडेम के लिए, आप शील्ड लगा देते हैं एसडी कार्ड के लिए, आप एसडी कार्ड में रीड राइट कर सकते हैं, हर तरह की शील्ड उसमें आ जाती है। तो उसका चूंकि डिजाइन सबको पता है, इसलिए वो इतना पॉपुलर है। सम हो मतलब इंडस्ट्री में कोई चीजें खामखा से पॉपुलर हो जाती हैं और फिर इतनी पॉपुलर होती हैं कि वो दे बिकम डिफेक्टिव स्टैंडर्ड। सो दैट इज द केस विद आर्डिनो आल्सो। उसकी खास उसकी आउटपुट की अरेंजमेंट्स हैं, वो सारी लोगों को जुबानी याद है कि यहाँ पर +5 होती है, यहाँ पे ग्राउंड होती है, यहाँ पे अब वो पोर्ट इस्लाम पोर्ट की बिट 0 यहाँ पे आ रही है, बिट 1 यहाँ पे आ रही है, उसका उन्होंने नाम रखे हुए हैं पिन 1, पिन 2, पिन 3, पिन 4। लेकिन आप उनको एज एन 8 बिट भी उस पर राइट कर सकते हैं असेंबली में जाके, उसमें पूरी पिन 1, पिन 2, पिन 3, पिन 4 सारी की सारी राइट एक ही 8 बिट के डाटा के तौर पर रीड राइट हो सकती है। वो एग्जैक्टली वही चीज है जो हमारा ये ग्रीन बोर्ड है। दिखाएं जरा ग्रीन बोर्ड, इसको इधर रख दिया करें यार, एक्स्ट्रा नहीं है कोई, आप यहाँ से उठा लेते हैं। कोई एक्स्ट्रा ले लें अपना, ये ना उठाएं यहाँ से, ठीक है ना। इसको मैंने बार बार दिखाना होता है। तो ये वाला जो ग्रीन बोर्ड है, ये वही आर्डिनो बोर्ड की तरह ही है। ओनली डिफरेंस जो आर्डिनो बोर्ड पे डिफाइंड है, यहाँ पे ये पोर्ट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं एग्जैक्टली आर्डिनो की तरह। सीरियल पोर्ट भी उसी तरह अवेलेबल है। ये हमारा अपना डिजाइन है और ये इतना हो सकता है ये भी दुनिया में कभी पॉपुलर हो जाए, लेकिन चांसेस बहुत कम। Alright, so this is today's lecture. Hope I've answered your question. आपकी जंप वायर मुनीबा कल हमने भेज दी थी, आज आपको जरूर मिल जाएंगी। आई एम प्रीटी श्योर अभी तक आपको मिल, चेक करें जरा कि क्यों नहीं आई, घर में कोई है उससे पता करें, क्योंकि कल हमने भेज दी थी और टीसीएस वाले देर नहीं लगाते, वो फौरन भेज देते हैं। आज आपको जरूर आपका यार कोई आपके मतलब उनको आपसे कोई खास ही मोहब्बत है अहमद इमरान नहीं, आपको पता नहीं टीसीएस वालों ने क्यों इतने दिनों के बाद डाटा भेजा, इतने दिनों बाद पैकेट। तो हमने कॉल भी पूछा, उन्होंने कहा उनको उनसे गुम हो गया, कह रहे थे उन्होंने मिस कर दिया। फिर मिला है आपको? मिल फिर गया मिल गया ना जी। तो बहरहाल कोई बात नहीं है, कुछ चीजें अगर किसी के मिसिंग है हम उनको भेज देते हैं 1-2 दिन में। देखें हम यहाँ पर एक तरह से दराज वाला सीन हमारा चल गया और लोग कहते हैं ये चीज मिस है, हम उसको भेज देते हैं। तो एक पूरा में भी ये भी साथ साथ एक एफर्ट करनी पड़ती है, कोई मसला नहीं। तो कोई भी चीज आपको कम लगे, अपने चीज में खराब हो जाए या कुछ चाहिए नया चीज चाहिए, तो हम उसको भेज देंगे। तो दिस इज इट, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। अली नूर गर्देजी कोई क्वेश्चन? अली नूर वालेकुम सलाम। हाँ भाई कोई क्वेश्चन? नहीं सर। कोई किक पूछे, पूछेंगे नहीं तो बड़े कैसे होंगे आप? चलें ठीक है,
All right, thank you. Bye bye. Let's end this meeting. Sign and leave. Co-host.